Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 23, part 2. Along the northeast coast of Australia stands a very long coral ridge. Now rocks of coral edge the Great Barrier Reef. This world-famous reef is more than 920 kilometers in length, and its distance from the coast varies from 11 to 100 kilometers. This coral reef has been formed as a result of the deposition of the skeletons of tiny insect corals. The corals are tiny sea insects that live closely to the rocky, rocky sea floor. The corals grow in warm, clear, shallow water in the tropical regions. When the coral dies, their remains stick at its places and new coral grow on them. The best remains of the coral are called the coral reefs. ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान पाई जाती है। इसे यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर है, जो तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक फैली है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक के नाम से अत्यंत छोटे छोटे जीव के अस्थि पंजरों के जमाव से हुआ है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली की चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में अपनी अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। The coral reefs have colorful wings and vegetation. People from various parts of the world come to see this. The tourists go in submarines to see the coral reefs. In the southeast of Australia lies New Zealand. New Zealand is the mountain island. In the north and south Iceland there stretches a mountain range from north to south. In the southern Iceland, this mountain range is called South Alps. The narrow Cook Strait divides the north and south Iceland of New Zealand. प्रवाल भित्ति रीफ पर रंग बिरंगे जीव व वनस्पति पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। कोरल चट्टानों अर्थात प्रवाल भित्ति को देखने के लिए पर्यटक शीशा युक्त पनडुब्बी जहाज का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। उत्तर और दक्षिण दोनों द्वीपों में से एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिण द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिणी अल्पास कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को सक्रिय कुक जलसंधि एक दूसरे से अलग अलग करती है। क्लाइमेट जलवायु। As Australia lies in the southern hemisphere, the seasons of Australia are opposite to those of northern hemisphere. When India, which is in northern hemisphere, has summer, that time there is winter in Australia. ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं। जब भारत में जो कि उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। On 22 December, the straight sun rays fall on the Tropic of Capricorn.
tell what seasons will be in India and Australia on that day। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। बताइए इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होंगी। द rains mainly occur due to southeast trade winds in Australia due to superficial structure shape of Australia content. The east mountain regions get very heavy rain while the central and western parts remain dry. Except the eastern mountain ranges, there are no high mountain ranges in the western and central parts of Australia, which could stop heavy rain winds that pure rains. Hence, in the Western Australia, there is vast desert. In the north coast, wide trade winds, and in the southern coast, especially in Tasmania, Iceland, rains occur by western winds। ऑस्ट्रेलिया जो होता है, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातली बनावट के कारण पूर्वी प्रवृत्ति तट पर अधिक वर्षा होती है। शेष मध्य व पश्चिम भाग शुष्क रह जाते हैं। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिम व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं होता है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके जिससे वर्षा हो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं द्वारा तथा दक्षिण तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति एवं जीव जंतु। द क्लाइमेट एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एनी एरिया affect the vegetation. The vegetations are found in Australia as per rain distribution. The coastal areas which receive heavy rain abound with long trees and forests. The western and central dry land are full of thorny bushes and grasses। किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातली स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ व घास पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल forests are found in the northern and northeastern coastal regions of Australia, which receive heavy rains. They are like monsoon forests, but they are evergreen. The important trees that grow in those forests are devdar, date, bamboo, baobab, and bottle are important trees. The equal eucalyptus is the main tree of the Australian forest. There are over 500 species of eucalyptus trees. The koala animal mostly lives on the trees and eats the leaves of eucalyptus trees। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। इनमें देवदार, तार, बांस, बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य हैं। दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी भागों में तथा तस्मानिया के में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। यहाँ के कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस के पेड़ों की पत्तियों को खाता है। The central regions of Australia which receive little rain have trees and grass equally. There are two types of grassland. Here in the north there is tropical grassland and in the south of
मरे डार्लिंग बेसिन हैज टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज नाउ एज ड्राउंस आल्सो। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती हैं। यहाँ के दो प्रकार की घास भूमि मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। There are lot of kangaroos in these regions. The kangaroos is the national animal of Australia. Emu, kookaburra, and lyrebird are other different bird. इस क्षेत्र में कंगारू नामक जंतु की बाहुल्यता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। एमू, कोकाबर्रा तथा लॉयरबर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। एमू, द एमू इज लार्ज साइज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन वेरी फास्ट। एमू बड़े आकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता है लेकिन तेज दौड़ता है। कोकाबर्रा, द कोकाबर्रा इज कॉल्ड द लाउंजिंग जैकल बिकॉज ऑफ इट्स पेनिसुलर लव लाइक कॉल। विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकल भी कहते हैं। लॉयर बर्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे सुंदर पक्षी में से यह एक है। किवीज एंड penguin are famous bird of New Zealand. Kiwi is the national bird of New Zealand. This cannot fly but run very fast. कीवी तथा पेंगुइन न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता है परंतु बहुत तेज दौड़ता है। थैंक यू।